Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students of class 8, as you know, we are dealing with the topic pressure. Yes, last topic जो हमारा था that was all about the pressure and its applications, importance. आज का जो टॉपिक होगा we are going to continue the same, लेकिन आज हम प्रेशर पढ़ेंगे in terms of fluids. So what will be the pressure in case of fluids? That is going to be our topic. I'll write here pressure in case of fluids. Pressure in case of fluids. Okay. Here I'm going to write this pressure in case of fluids. Pressure in case of fluids. Hope it's clear to you guys. Okay. Before discussing the topic, let me tell you what the fluid is actually. आपको पता होगा फ्लूइड क्या होता है. फ्लूइड वो सबस्टेंस होगा जो फ्लो करेगा. So any substance which can flow, that is called as fluid. So I will write here any substance which can flow, वो substance जो flow करेगा उसको, उस चीज को हम fluid कहेंगे. And the property of that substance which has a tendency to flow, that is called as fluidity. Are you getting me, beta? So what is fluidity? It is the property of any substance which has a tendency to flow. Out of the three states of the matter, we have solid, we have liquid, and we have gas. Mainly three states of the matter. We can easily identify that there are two states of matter. Those are liquids and gases which have a tendency to flow, and they are simply terms as, so they are called as fluids. They have the property of fluidity. Are you getting me? They have the property of fluidity. So my topic is, what is the cause of pressure? What is the pressure in case of liquids or in case of gases? We have to study this concept today. Very important concept. ओके ये आपको अगर आप हायर क्लासेस में नाइन्थ क्लास नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा नाइन्थ क्लास में, उस पर आपको एक पूरा सा चैप्टर मिलेगा दैट इज़ रिलेटेड टू द फ्लोटेशन. उसमें आपको ये अंडरस्टैंड होगा बहुत अच्छे से व्हाट इज़ द प्रेशर इन केस ऑफ फ्लूइड्स. ओके बेटा, अब देखो, we have studied this pressure is a force that is applied on a particular area. Okay, so we have, that was discussed in the first lecture. What is pressure? Pressure is simply the force that is applied over a particular area. Okay बेटा, अब ये जो देखो, ये जो फोर्स है ना, फोर्स को हम, ये जो फोर्स है, it's also termed as thrust. Okay beta, so what is this thrust? It is the force which is acting on an object or which is acting on a body. ये thrust जो होता है ये always act करेगा, it always acts, or force always act in the perpendicular direction. Are you getting me? In the perpendicular direction. So what is thrust? Thrust is actually the force which is acting on the body. So thrust is, it's a force which acts on an object in a perpendicular direction, which acts on an object in a perpendicular direction. So ये जो thrust होता है बेटा, it's simply, I can say, a force that is acting on an object in a perpendicular direction. ये जो फोर्स एक्ट करेगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज थ्रस्ट. Are you getting me? Our question is, what is the pressure in case of fluids? अगर आपको याद होगा, in the first lecture we have come to the point that pressure is equal to force upon area. इसको हम अब thrust upon area भी कह सकते हैं. Are you getting me? So देखो बेटा,
प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज दैट इज द न्यूटन. एरिया का एसआई यूनिट क्या है? दैट इज द मीटर स्क्वायर, because area has two dimensions. So what is the SI unit of pressure? That is Newton per meter square. इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं, दूसरे नाम से भी कह सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज पास्कल. दैट इज कॉल्ड एज Pascal. So it's named with another name that is called as Pascal. So what is the SI unit of pressure? It is Pascal. It is Pascal, or I can say Newton per meter square. So 1 Newton per meter square is equal to 1 Pascal. PA. Pascal is represented as PA. Okay बेटा. So it's all about the pressure, जो हमने पहले लेक्चर में भी स्टडी किया था. ठीक है बेटा. बट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रेशर दैट इज टू बी टेकन, दैट इज टू बी स्टडीड इन केस ऑफ फ्लूइड्स. ओके बेटा. अब देखो ये जो प्रेशर होता है बेटा, प्रेशर ऑलवेज एक्ट करेगा. याद रखो आप ये पॉइंट. प्रेशर जो है प्रेशर ऑलवेज एक्ट in the perpendicular direction. In the perpendicular direction, pressure always act करता है in the perpendicular direction. In the perpendicular direction. Are you getting me? And ये जो pressure है it's only related to fluids. इसको हम स्टडी करेंगे only related to fluids. Only related to fluids. अब सर क्वेश्चन क्या है? रिलेटेड टू, अगर हम प्रेशर इन केस ऑफ सॉलिड्स स्टडी करेंगे. देखो ये जो प्रेशर है, प्रेशर को हम स्टडी करेंगे इन केस ऑफ फ्लूइड्स ओनली. क्वेश्चन इज नाउ व्हाट अबाउट फॉर द सॉलिड्स? उस चीज को हम जब हम प्रेशर स्टडी करेंगे, जब हम प्रेशर स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉलिड्स, ये प्रेशर तब दूसरी टर्म बन जाती है. दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. दैट इज कॉल्ड एज, हाँ ये पॉइंट आप याद रखो. जब हम प्रेशर को स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ सॉलिड्स, उस टाइम हम प्रेशर यूज नहीं करेंगे वर्ड, उस टाइम हम प्रेशर यूज नहीं करेंगे टर्म. उस टाइम जो फीजिबल टर्म है, सूटेबल टर्म होगी, दैट विल बी द स्ट्रेस. दैट विल बी द स्ट्रेस. आर यू गेटिंग मी? अब ये जो स्ट्रेस है, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द सॉलिड्स. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर? अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन द स्ट्रेस एंड डिफाइन द प्रेशर, सो आप इनकी डिफरेंशिएशन आप ऐसे बताओगे कि जो प्रेशर होता है दिस इज स्टडीड इन केस ऑफ फ्लूइड्स ओनली, एंड जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को हम स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ सॉलिड्स. अगर किसी सॉलिड के ऊपर कोई लोड एक्ट करेगा, अब देखो यहाँ पे जो प्रेशर में हमने कहा कि इट इज़ द थ्रस्ट अपॉन एरिया विच इज़ एक्टिंग इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ये जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस एक्ट कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इन टू डायरेक्शंस. इट कैन एक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज वेल, and it can act in the parallel direction as well. Are you getting me? It can act in the perpendicular. अब perpendicular क्या? To the surface of an object. Parallel in the parallel direction as well. Parallel direction to the surface of an object. This is in case of stress. जो pressure होता है, pressure always exerts in the direction perpendicular to the surface of an object, while as the stress always stress may act in the direction perpendicular as well as in the direction parallel to the surface of an object. Are you getting me? So अब क्वेश्चन है हमारा, what is the case of stress in case of solids? What is the case of stress in case of solids? देखो बेटा, जब हम प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, तो हम वी टॉक अबाउट द फ्लूइड्स. एंड आपको पता है कि प्रेशर जो है इट्स रिलेटेड टू द फ्लूइड्स. हाँ, अब देखो फ्लूइड्स में क्या क्या आएगा? फ्लूइड्स में आपको लिक्विड्स आएंगे, फ्लूइड्स में आपको गैसेस आएंगे. बट व्हाट अबाउट द सॉलिड्स? सॉलिड्स में जो प्रेशर होता है वो कैसे एक्सर्ट होता है? देखो बेटा, अगर मैं सॉलिड की बात करूंगा, सॉलिड में स्ट्रेस जो अप्लाई होता है, इट इज ड्यू टू इट्स बॉटम सरफेस. इट्स ड्यू टू द बॉटम सरफेस. सपोज अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, दैट इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट. आई हैव प्लेस्ड दैट ऑन ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड. अब इस चीज का हमने क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द pressure, we have to find out the stress for that solid object. So this point you have to remember, this is, अगर मैं प्रेशर इन सॉलिड्स की बात करूंगा उसको हम स्ट्रेस कहेंगे,
उसको हम स्ट्रेस, दैट इज एक्सर्टेड, ओके, ड्यू टू द ड्यू टू इट इज बॉटम due to its bottom surface that is in contact that is in contact that is in contact with the surface with the surface. Are you getting me? देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे सॉलिड है, कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड ब्लॉक है दैट इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, इसका जो प्रेशर हमने निकालना है, इसका प्रेशर कैसे आएगा, दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, लोड इज सिंपली कॉल्ड एज फोर्स. अब ये जो प्रेशर होता है इन केस ऑफ सॉलिड दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस, सो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू लोड अपॉन एरिया. अब देखो कितना लोड, कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इस बॉटम सरफेस पे, वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉटम सरफेस ओनली. ये देखो ऊपर जो लोड पड़ रहा है ना, देखो ऊपर लोड पड़ेगा, सो ऑब्वियसली ऊपर लोड पड़ेगा, वही लोड जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बॉटम सरफेस पे. आर यू गेटिंग मी? वही जो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कहां पे, बॉटम सरफेस पे. कितना लोड बॉटम सरफेस पे एक्सर्ट हो रहा है. सो दैट इज व्हाई आई टॉक अबाउट प्रेशर इन केस ऑफ सॉलिड्स इज ड्यू टू द बॉटम सरफेस ओनली, फॉरगेट अबाउट द टॉप सरफेस. जितना लोड आपको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बॉटम सरफेस में वही हमने कैलकुलेट करना है. कितना लोड, कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उस बॉटम सरफेस पे डिवाइड बाई कितना एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट रहेगा, उस चीज को हम स्ट्रेस कहेंगे, उस चीज को हम प्रेशर इन सॉलिड कहेंगे. आई गॉट दिस बेटा. अब ये तो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रेशर इन केस ऑफ या स्ट्रेस इन केस ऑफ सॉलिड्स. सो अगर आपको कोई कहेगा व्हाट इज स्ट्रेस इन केस ऑफ सॉलिड्स, इट इज प्रेशर इन केस ऑफ फ्लूइड्स या स्ट्रेस इन केस ऑफ फ्लूइड्स, इट इज ड्यू टू ओनली द बॉटम सरफेस जो कॉन्टैक्ट में रहता है, किस के कांटेक्ट में, ग्राउंड के कांटेक्ट में इसके ऊपर जो फोर्स जो डिस्ट्रीब्यूट लोड हो रहा है ऊपर फ्रॉम द टॉप सरफेस टू द बॉटम सरफेस, जो असेंबल होगा बॉटम सरफेस पे कितना लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और द कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज स्ट्रेस. अगर आपने स्लैब की बात की है, स्लैब जो होता है, देखो लेट अस सपोज दिस इज ए स्लैब, जो हमें हमारे हाउसेज में होते हैं स्लैब्स. ये जो लोड है, लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये स्लैब्स और द पिलर्स, उन पिलर्स को हम कॉलम्स कहते हैं, उन पिलर्स को हम क्या, सो कितना लोड ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कॉलम में. देखो कॉलम इन द कॉलम को पिलर्स कहते हैं हम. सो उस चीज में हम स्ट्रेस क्या कहेंगे, स्ट्रेस इज एक्चुअली दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड टू द बॉटम सरफेस. ये कितना लोड यहाँ पे एक्सर्ट करेगा, फॉरगेट अबाउट यहाँ पे ये जितना लोड एक्सर्ट कर रहे हैं, ये पूरा लोड एक्सर्ट करेगा किन के ऊपर, कॉलम्स के ऊपर. आर यू गेटिंग मी? सो दैट उस चीज को हम कहेंगे प्रेशर इन केस ऑफ सॉलिड्स. सो प्रेशर इन केस ऑफ सॉलिड्स आपको याद रखो, ये आप रिमेंबर, यू जस्ट रिमेंबर दिस, इट इज एक्चुअली द फोर्स, इट इज एक्चुअली द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड ड्यू टू द बॉटम सरफेस दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड. आर यू गेटिंग मी? दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रेस इन केस ऑफ सॉलिड्स. अगर मैं प्रेशर इन केस ऑफ लिक्विड्स की बात करूंगा और प्रेशर इन केस ऑफ फ्लूइड्स की बात करूंगा, अब देखो वहां की स्टोरी जो है वो अलग सी स्टोरी है. फ्लूइड जो होता है, अगर मैं फ्लूइड की बात करूंगा, ए फ्लूइड contained in a vessel, a fluid contained in a vessel exerts pressure at all points and in all directions. This is the important point in case of fluids. In case of pressure that is related, that is to be studied in case of fluids. What is that point? ये जो fluid होता है, liquid की बात कर रहा हूँ मैं, या गैस की बात कर रहा हूँ मैं, it is contained in a vessel. अगर ये vessel में contain रहेगा, ये बंद रहेगा, ये exert करेगा pressure at all points in all the directions. This is the point. This point has to be shown. We have to see this point. We have to experience. We have to study this point. अब देखो, suppose हमारे पास कोई स्फीयर होगा, one second, let me fix it. Let us suppose we have a sphere here. Are you getting me? We have a sphere here and इसमें हमने एक fluid को assemble किया. We have kept a fluid. A fluid is contained in a sphere. Are you getting me? जब इसमें फ्लूइड होगा, दैट मीन्स से अबाउट द लिक्विड होगा या गैस होगा, तो हमने स्टडी करना है कि इसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट इज एक्सर्टेड एट ऑल पॉइंट्स, एंड इन ऑल डायरेक्शंस. इसकी जो डायरेक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें,
आर यू गेटिंग मी? लेकिन सॉलिड्स की बात कर रहा हूं मैं, तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा एट द बॉटम सरफेस ओनली। यहाँ पे इन ऑल डायरेक्शंस प्रेशर एक्सर्ट करता है, इन ऑल डायरेक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब देखो वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कैसे हम देख सकेंगे उसको ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल ड्रिल ए होल हियर, यहाँ पे होल करेंगे, यहाँ पे होल करेंगे, यहाँ पे होल करेंगे, यहाँ पे होल करेंगे। होल करने के बाद आपको क्या पता चलेगा, अगर यहाँ पे फ्लूइड होगा, अगर यहाँ पे लिक्विड होगा, तो लिक्विड विल बी ड्रेन्ड लाइक दिस। आर यू गेटिंग मी? लिक्विड विल बी ड्रेन्ड लाइक दिस। ओके, लिक्विड विल बी ड्रेन इन ए कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे लिक्विड जो है, यहाँ पे मैंने होल ड्रिल किया, यहाँ पे भी होल हुआ, यहाँ पे भी होल है, यहाँ पे भी होल है। दैट मीन्स फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हुआ, यहाँ पे भी प्रेशर एक्सर्ट हुआ, प्रेशर एक्सर्ट हुआ, प्रेशर एक्सर्ट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर एक्सर्ट होने के बाद ये लिक्विड जो हुआ वो फ्लो करेगा फ्रॉम द स्फीयर। अगर मैं गैस की बात करूंगा, यहाँ पे गैस ऐसे बाहर निकलेगा, डिफ्यूज होके वहां पे एटमॉस्फेयर के साथ मिक्सअप होगा। आर यू गेटिंग मी? सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ये जो प्रेशर है, प्रेशर एक्सर्ट करता है लिक्विड, आर यू गेटिंग मी, टू इट्स वॉल्स एज वेल, आर यू गेटिंग मी? Pressure is exerted towards the liquid, to its walls as well. So that is what pressure in fluids is. Pressure in fluids जो होता है, that is exerted in a vessel, at all points, ये pressure जो होगा ये exert करेगा at all points, but in all directions. I'll give you another example. Here suppose we have a container. Again we have a container, and container में हमने क्या किया, we have kept a fluid here. A fluid को हमने यहाँ पे kept, that is to be kept in a vessel. Are you getting me? अब हमने यहाँ पे होल किया, यहाँ पे भी 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 होल किया। What you experience? We experience this कि ये वाला जो लिक्विड, यहाँ से भी लिक्विड फ्लो करेगा to the ग्राउंड, यहाँ से भी लिक्विड फ्लो करेगा, एंड यहाँ से भी लिक्विड फ्लो करेगा। सेम वे यहाँ से भी लिक्विड फ्लो करेगा, यहाँ से भी लिक्विड फ्लो करेगा, एंड सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी जो यहाँ पे होगी। दैट मीन्स अगर मैं डिफरेंट लेयर्स की बात कर रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट लेयर्स। यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, यहाँ पे भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, यहाँ पे भी प्रेशर, बिकॉज आपको पता है कि लिक्विड जो है केप्ट इन ए कंटेनर, दैट इज एक्सर्टिंग प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स। ये भी एट ऑल पॉइंट्स इट विल एक्सर्ट प्रेशर, बट where the difference lies, fluid gets drained out from this vessel. Where the difference lies here, यहाँ पे जो फ्लूइड की डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द टॉप, अगर मैं टॉप की बात कर रहा हूँ, ये फ्रॉम दिस बॉटम सरफेस टू दिस लिक्विड, यहाँ पे लेट अस सपोज x1 है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिक्विड। इस पोर्शन की वजह से लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ, लेट अस सपोज दैट इज x2। इस पोर्शन की जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट अस सपोज दैट इज x3, एंड सेम वे यहाँ पे भी x1, x2, x3 होगा। अब आपको यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है कि x3 जो है ये सबसे बड़ा है, सबसे डिस्प्लेसमेंट इन x3 इज मोर एज कम्पेयर टू x2 एज कम्पेयर टू x1। वाटर गेट्स डिस्प्लेस्ड यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रही है। यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने का मतलब हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इस पे एक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से फोर्स में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आ रही है, दैट इज़ x3। फ्लूइड ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से कम डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से और ज़्यादा कम डिस्प्लेस हुआ। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि फ्लूइड में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, एंड सबसे मैक्सिमम फ्लूइड, अब क्या आपको पता चले, यू हैव टू डिराइव अ पॉइंट फ्रॉम हियर। इन फ्लूइड pressure difference gets created, and as we go beneath, pressure increase हो रहा है। As we go beneath to the surface, to the bottom surface, pressure increases, जिसकी वजह से फ्लूइड ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है। अब देखो फंडा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, why pressure gets increased as we go beneath, because जितना भी हम नीचे जाएंगे उतना ही हमारा सेल्फ वेट जो होता है किसका, लिक्विड का, वो बढ़ जाता है।
देखो इस चीज़ में यहाँ तक अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँगा यहाँ से, सो दिस मच ऑफ सेल्फ वेट ए लिक्विड इज एक्सर्टिंग ऑन दिस लेयर। अब अगर मैं इस लेयर की बात करूँगा तो दिस मच ऑफ वेट इज एक्सर्टेड बाई लिक्विड ऑन दिस फ्रॉम द टॉप सरफेस फ्रॉम द सी सरफेस। एंड अगर मैं इस लेयर की बात कर रहा हूँ दिस मच ऑफ द वेट इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड फ्रॉम द टॉप सरफेस। अब आपको पता चला, अब आप यू कैन इजीली आइडेंटिफाई सबसे ज़्यादा सल्फेट कहाँ पे आपको मिलेगा। सबसे ज़्यादा सल्फेट यहाँ पे मिलता है आपको, बिकॉज इतना वाला पोर्शन जो है, वो इतना वाला पोर्शन जो लिक्विड एक्सर्ट करता है इस लेयर पे, यहाँ पे थोड़ा सा कम, यहाँ से सबसे ज़्यादा कम, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे मिनिमम, एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे कम। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। सो व्हाट इज़ द पॉइंट टू बी नोटेड, एज यू गो बीनीथ टू द बॉटम लेयर, प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है। एंड माइंड इट, ये जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑलवेज एक्ट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, pressure always act in the perpendicular direction in case of fluids, and it acts in जो pressure होता है about the solid, it acts in the perpendicular direction as well as in the parallel direction, जो जिस चीज़ को हम stress कहेंगे, जिस चीज़ को हम क्या कहेंगे, stress कहेंगे। So this was all about the pressure in case of fluids. So what is pressure in, what is the what's the nut effect, what is the net effect, जो नटशेल में हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर होता है ये इंक्रीज करता है एज यू गो बीनीथ टू द सरफेस, एज यू टू गो बीनीथ टू एनी ऑब्जेक्ट, टू एनी वेसल, एंड मोर इम्पॉर्टेंट ये जो प्रेशर है इट एक्सर्ट्स प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स एंड इन ऑल डायरेक्शन। सेम इज द केस विद द गैसेस एज वेल। ओके बेटा, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेशर इन केस ऑफ फ्लूइड्स। नाउ द लास्ट टॉपिक जो हमारा पेंडिंग रहता है इस चैप्टर में, दैट इज ऑल अबाउट, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।